Good morning, students. Today we will discuss the exercise of our magnetism and matter chapter, that is chapter number 5. And in this chapter, we have studied about the magnet and the earth magnetism. So, the first question is question number 5.1. So, there are 6 parts of this question. First one, the vector needs 3 quantity for its specification. Name the 3 independent quantity conventionally used to specify the earth's magnetic field. So simply these 3 independent magnetic to specify the earth magnetic field. So you know, so first one is angle of declination, second one angle of dip, and third one, this is horizontal component of earth's magnetic field. So this is the answer of this question, that is we have to write down the earth's magnetic, the basic quantities that specify the earth's magnetic field. Second question is the angle of dip at a location in southern India is about 18 degree. Would you expect a greater or smaller dip the angle in Britain? So this is the line of equator and the southern India. So the line of equator passes through the southern India. So at this portion इक्वेटर पे जो एंगल होता है एंगल ऑफ डिप दैट इज 0 डिग्री एंड towards this side it will increase to 90 degree, towards this side it varies to 90 degree. So means अब आपको ब्रिटेन की पोजीशन पता है तो आप बता सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप जो है बढ़ेगा या कम होगा. सो लाइन ऑफ इक्वेटर के नज़दीक है इंडिया, तो उसमें आपका जो 0 डिग्री जो जहाँ बिल्कुल लाइन ऑफ इक्वेटर पे है, इंडिया नज़दीक है तो 0 यहाँ 18 डिग्री है. तो इसके बाद आपका ब्रिटेन जो है कहाँ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो ब्रिटेन के जो आएगा तो वो दैट इज़ नियर बाय टू द पोल्स, सो इट विल इंक्रीज. अब इंक्रीज कितना होगा पर्टिकुलर वैल्यू वो आपने अगर आप पोजीशन देख लेंगे तो उससे पता चल जाएगा, बट हम सिंपली हमें बताना है कि विल वुड यू एक्सपेक्ट अ ग्रेटर और स्मॉलर डिप. सो यहाँ पोल से इक्वेटर से पोल की तरफ जब जाएंगे तो नेचुरली क्या होगा, एंगल ऑफ डिप इंक्रीज करेगा. फिर से ध्यान दें, इक्वेटर पर 0 डिग्री एंगल ऑफ डिप डेल्टा एंड पोल्स पर होगा 90 डिग्री. तो अब आप देख लीजिए किस कंट्री कहाँ पोजीशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं कि 70 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा, उसके अकॉर्डिंगली होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू मेड अ मैप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एट मर्ल 1 इन ऑस्ट्रेलिया, वुड द लाइन सीम्स टू गो इनटू द ग्राउंड और कम आउट ऑफ द ग्राउंड. तो फिर से हम ग्लोब की पोजीशन बनाते हैं. दिस इज द पोजीशन ऑफ Earth's magnetism. So this is the magnet. So this is South Pole and this is North Pole. So for a bar magnet, all the magnetic field lines coming out from North Pole and seems to be enter from South Pole. So where is Earth's North Pole, Earth's magnetic North Pole? This from that point all the magnetic field lines will seems out to be coming outward, and from this position they seems to be going inward in the earth. So Australia is nearby to a geometrical south pole. So from that point the magnetic field lines will come out from the earth or will come out from the ground. So you have to write down the answer that in Australia the earth's magnetic field lines
seems out to be coming outward. The next question is, in which direction would a compass free to move in a vertical plane point to if located right on the geometrical north or geometrical south? So क्वेश्चन इज कि ज्योमेट्रिकल नॉर्थ ये है पोजीशन और ज्योमेट्रिकल साउथ ये पोजीशन है, तो ये आपके मैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ है। यहाँ जो पोजीशन है मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसी है, अपवर्ड, और साउथ पोल पे भी कैसी है, ये 90 डिग्री बना रही है, बट ये है डाउनवर्ड। अब कहा जा रहा है कि अगर इन पोजीशन पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है इस तरह से, ये है BN और ये PS, यहाँ ऐसे है, और आपकी कंपास को इस तरह रखा जाता है। So will there will be any deflection in the magnetic compass or not? So in this case what will happen, because these magnetic field lines अगर इस पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो फ्रॉम दीज टू पोजीशन, और यहाँ जो होगी तो कंपास के लिए कोई कंपल्सन नहीं है वो किस तरह मूव करेगी, उस पर ये फील्ड एक्ट नहीं करेगी, डज नॉट एक्ट, क्योंकि 0 अगर 90 डिग्री का बनाती तो ये टॉर्क इस पे प्रोड्यूस होता, बट यहाँ 0 डिग्री का बना रही है तो टॉर्क इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा, और ये मैग्नेटिक कंपास जो है वो मूव नहीं करेगी किसी भी तरफ, ये ध्यान रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in Earth's field it is claimed roughly approximate the field is due to dipole magnetic moment 8 into 10 to power 22 joule per Tesla located at its, check the order of magnitude number in some way. So this is numerical problem and ये पूछा जा रहा है कि आपका अगर मैग्नेटिक मोमेंट सेंटर पे इतनी है तो किसी पोजीशन पे आप निकालिए इसको। तो ये पॉइंट हम अगर इसको मान लें एक्सियल पॉइंट, और इधर अगर इक्वेटर पे माने तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा, बट हमें एक पॉइंट के लिए कहा गया है, तो अभी अलग अलग हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड। एक्सियल लाइन पे तो आप ये करेंगे, यहाँ आर आपको पता है कितनी होगी 6400 किलोमीटर्स, और यहाँ आर पुटअप कर देंगे। ये आपने एक्सियल लाइन मीन्स ये अर्थ का सेंटर है, यहाँ डाइपोल एक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे तो हम ये P पॉइंट मान लेते, इधर हम Q मान लेते हैं। तो Q के लिए क्या फील्ड होगी, P के लिए तो निकाली हुई है, ये इक्वेटोरियल के लिए निकाली है। अगर आप उसके लिए निकालेंगे एक्सियल के लिए तो ये आपकी 2m/r³ आ जाएगी, तो 2 पोजीशन के लिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ये भी निकाल सकते हैं आप। आगे है क्वेश्चन आपका, geologists claim that beside the main magnetic north south there are several local poles on Earth's surface oriented in different directions. How such a thing possible at all? These are hypothetical questions. The answer is yes, there are several local poles on the different directions. Magnetized material deposit is an example of local north and south. Because of due to these minerals or metals, और ये इनकी वजह से ये बहुत सारे लोकल नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, तो वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड नहीं है उनकी मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे, इसलिए वो थोड़ा बहुत चेंज होती है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए वो आता है। बट दीज आर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। हमें जो कंसंट्रेट करना है इस चैप्टर में वो
मेनली कंसंट्रेट करना है ऑन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। फिर से मैं बता रहा हूँ कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उनके बारे में हमने डिस्कस करना है। और ये दीज आर द हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। और वैसे ही जो अगला क्वेश्चन है वो भी हाइपोथेटिकल है। ठीक है, ओके, थैंक यू।